Hello and welcome once again, my dear students of 10th Standard English Medium. And today we are going to start a new chapter of English. Okay, so the new chapter of English is from your textbook, Footprints Without Feet. And the name of the chapter is basically it's a sixth chapter of your textbook, The Making of a Scientist, which is a brief biography which has been written by Robert Pattinson. Okay, so this is a biography of a scientist, as it suggests, and obviously we are going to read this in detail. But as far as the reading part of this chapter is concerned, you are going to read it by yourself from the textbook. Okay, basically, what all points that I have listed out on the board. Okay, that will tell you the brief biological incidents of famous scientist Richard Albright. Okay, it will explain us what was the journey of Richard Albright of becoming a scientist. He is still alive. He was basically born in the year 1959 in USA. Okay, and he was brought up. He grew up in Reading town of Pennsylvania, USA. Okay, Reading is the name of a small city which is situated in Pennsylvania, which is the name of the state in USA. Obviously, is the name of the country. Okay, now अब मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ठीक से हो. ओके, पहली बात यह है कि ये साइंटिस्ट का बायोग्राफी इसलिए हमें दिया गया है साइंटिस्ट का क्योंकि मॉडर्न साइंटिस्ट है who is still alive as I told you earlier. Okay, और हमें इंस्पिरेशन देने के लिए कि ये साइंटिस्ट जो है रिचर्ड एब्राइट, उनका थ्योरी ये था कि इन केस इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ देन यू डोंट always have to be a kind of very intelligent. Sometimes your hard work also, a little bit of more extra effort also helps you to become successful in your life. And obviously the kind of strong willpower of becoming something with whatever that you might have decided in your mind is also required. आपने जीवन में सफल होने के लिए जो अपने दिमाग में तय किया है वो फर्म डिटर्मिनेशन होना जरूरी है. ऐसा नहीं कि चलो अगर नसीब होगा तो बन जाएंगे, नहीं होगा तो कुछ और बनेंगे. That is not the determination. It's not the determination. It is only a curiosity. Okay, and only having the curiosity is not going to make you successful in your life. Okay, the curiosity should always be backed up by a little bit of more extra effort than the normal average students would make. Say for example, I would just try to give an example in a practical sense कि कोई student अगर सफलता पाने के लिए या तो अच्छे रैंक्स लाने के लिए अगर दिन के 4-5 घंटे मेहनत करता है तो लिटिल बिट ऑफ मोर एफर्ट देन दैट. ओके, 5 से 6 घंटे या तो उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर एफर्ट लगाया जाए तो ऑब्वियसली रैंक्स तो अच्छे आएंगे ही, लेकिन आपने दिमाग से जो तय किया है लाइफ में बनने के लिए वो भी आप बन पाओगे. तो ये रिचर्ड एब्राइट ने करके दिखाया था. ऑल हिज लाइफ ही हैड एक्सपीरियंस्ड दिस पर्टिकुलर theory of becoming successful in his life. That अपने childhood period से ही when he was at the primary level of his studies, at that time only he was so curious and his curiosity was always backed up with immense level of studies, deep level of studies on one particular subject only that eventually helped him to become successful in his life as a scientist. ओके, तो वो साइंटिस्ट थे एक स्पेसिफिक लेवल के साइंटिस्ट थे. ओके, जैसा कि ध्यान रखिए लाइक बुक में से आपको पता ही चल ही जाएगा कि उन्होंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर स्टडीज किया था, उस फील्ड के वो साइंटिस्ट थे. एंड स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ हिज स्टडीज ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग द स्टडीज ऑफ बटरफ्लाइज. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट पे मैंने ये भी लिखा है कि when he was in second grade only,
आप लोग पता ही होगा आपको कि सेकेंड ग्रेड में बच्चा बहुत ही छोटी उम्र का होता है, ओके, 7-8 साल की उसकी उम्र होती है। एट दैट टाइम ओनली he collected 25 species of butterflies, okay, when he was only in the second grade. तो इस रिसर्च का अगर हम थोड़ा सा बात करें तो this was the starting point of his research activities. Actually, this was the first ever research he had ever made in his life. Okay, and book में ये आर्टिकल में ये लिखा गया है कि उनकी जो मदर थी उनसे उनको बहुत ही इंस्पिरेशन और हेल्प मिलता था। So all sorts of required material like cameras and telescopes and microscopes and all the other stuff which are required for research activities. उसको काफी बुक्स भी चाहिए होती थी, तो वो भी मदर उनको जो चाहिए होता था वो ला के देती थी। एंड शी वॉज द क्लोजेस्ट कंपेनियन टू हिम, ठीक है। वो अपने मदर के साथ रहते थे। एंड एज फार एज दिस आर्टिकल हैज सजेस्टेड अस, उसमें लिखा गया है कि मदर उनकी जो है वो क्लोजेस्ट कंपेनियन थी। उनका जो कुछ भी रिसर्च वर्क होता था वो उनके सेलर में होता था, ठीक है। जो उनका जो एक बेसमेंट होता है, बेसमेंट उसको कहेंगे हम, एक्चुअली उनके घर में एक बेसमेंट होता था, उसमें उन्होंने रिसर्च किया था। सो एट द टाइम when he was only around 7 years of age, in the second grade, he collected all sorts of different types of butterflies which were available within the radius of 25 miles from his house. उनके घर से 25 माइल्स के एरिया में जितने भी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई उनको अवेलेबल थे, ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने यानी वो स्पेसिमेन, ठीक है, अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज हम इमेजिन कर सकते हैं, बहुत सारे बटरफ्लाइज होंगे, तो वो उन्होंने अपने बेसमेंट में इकट्ठा किए थे। हर बटरफ्लाई की क्या खासियत होती है वो भी उनके उसके अलग अलग चार्ट्स उन्होंने बनाए थे। So just imagine the sort of activity this child was involved in, rather than spending his childhood in playing, spending a lot of time watching TV and all that. Okay, उन्होंने अपने रिसर्च वर्क में ये समय बिताया था। और क्योंकि उनका बचपना था इसलिए उस वक्त ये भी सोचते थे, आर्टिकल में लिखा गया है कि he had developed a tendency after doing a lots and lots of research in these butterflies के दुनिया में सिर्फ इतने ही बटरफ्लाइज होते हैं। ओके, आपको वापस मैं याद दिला दूं कि he carried out his research within the radius of 25 miles from his house only, ठीक है। तो उसके ऊपर से उन्होंने ये तय किया कि यूएसए में खास करके उनके कंट्री में, उनका जो होम कंट्री है, उसमें ओवरऑल मिला के इतने ही बटरफ्लाइज होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इट्स व्हाट ही कंक्लूडेड फॉर हिज रिसर्च एक्टिविटीज। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं था। ओके, थोड़ा टाइम जाने के बाद उन्होंने एक बुक पढ़ा। ही वाज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये बुक का नाम था, व्हिच वाज रिटन बाय डॉक्टर अर्कहार्ट। ओके, डॉक्टर अर्कहार्ट वो बायोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में है वो, उनके बायोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने एक बुक लिखा था और उस बुक का नाम है वापस द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो यहाँ पे बुक का टाइटल में जो मोनार्क एक्स लिखा है, दैट इज वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। तो वो बुक पढ़ने के बाद उनको पता चला कि मोनार्क जो बटरफ्लाई है वो रियल में क्या होता है, और उसकी भी बहुत सारी स्पीशीज होती है। ऐसा नहीं है कि मोनार्क स्पीशीज का अगर हमने बात किया, ओके, तो वो एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज का होता है। इसी नाम में भी बहुत सारे सब स्पीशीज होती है। एंड ही हैज टॉक्ड अबाउट अ पर्टिकुलर स्पीशीज व्हिच इज नोन एज मोनार्क एक्स इन दिस बुक, एंड हाउ इट हैड ट्रैवल्ड फ्रॉम समवेयर एल्स टू सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, कि बहुत दूरी तय करके, जनरली बटरफ्लाई का रेंज इतना ज्यादा नहीं होता है, वो उड़ के बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाते, बर्ड्स की तरह उनका नहीं होता है। दे कैन फ्लाई बट दे हैव अ लिमिटेशन ऑफ फ्लाइंग, दे हैव अ काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ डिस्टेंस इन फ्लाइंग, और उनका लाइफ स्पैन भी बहुत ही कम होता है।
तो इसमें ये बुक के एंड में राइटर ने, यानी ये जो लेक्चर जो प्रोफेसर थे बायोलॉजी के, बुक के एंड में उन्होंने एक इंस्पायर किया था रीडर्स को कि जितना हो सके उतने मोनार्क एक्स के विंग्स आप इकट्ठा करो। अगर आपको पता चलता है तो फिर आपको बेसिकली आइडिया होगा। बुक में तो वैसे डिस्क्रिप्शन दिया ही था, लेकिन डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो विंग्स अवेलेबल होते हैं आपके सराउंडिंग्स में से, उनको इकट्ठा करने का कोशिश करो, तो रियल में आपको पता चलेगा कि मोनार्क एक्स जो है वो मोनार्क स्पीशीज के जो बटरफ्लाई हैं वो कितनी सारे वैरायटीज में मिलते हैं यूएसए में। सो बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ दिस बुक ही कैरिड ऑन फर्दर विथ हिज रिसर्च। उन्होंने अपना रिसर्च जो है वो जारी रखा और बहुत ही इंटेंस लेवल पे उन्होंने रिसर्च किया उसके बाद में। और उसके बाद का उनका जो स्टडी था मैं आपको आगे बता चुका हूं कि वो अपने बेसमेंट में ये स्टडी करते थे। ओके, सो दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स ही स्टडीड द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाई का ग्रोथ जो है शुरुआत के लेवल से एंड तक किस तरह से होता है, ठीक है, वो स्टडी उन्होंने किया। सो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज he used to catch female butterflies। फीमेल बटरफ्लाइज को वो पकड़ते थे, उनके एग्स इकट्ठा करते थे और अपने बेसमेंट में रखते थे। एंड he helped the growth of those butterflies according to their life cycles। ओके, उनका जो कुछ भी लाइफ साइकिल रहता था, लाइफ साइकिल का स्टडी उन्होंने इस बुक में ऑलरेडी करके रखा था कि प्रीमेच्योर डेथ ना हो जाए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए लाइफ साइकिल के बिल्कुल मुताबिक, उसके मुताबिक वो उनका ग्रोथ करते थे। और तब उनको पता चला कि एक के बाद कैटरपिलर बनने की अवस्था उसकी क्या होती है, कितने टाइम में होती है, और कैटरपिलर की अवस्था में वो कैसा दिखता है, वो सब। और उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज नोन एज प्यूपा इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, प्यूपा की अवस्था में बटरफ्लाई का ग्रोथ जो है वो किस कंडीशन में होता है, कितने टाइम में होता है, उस वक्त वो कैसा दिखता है, कितनी साइज का होता है वो। एंड देन इवेंचुअली व्हेन इट डेवलप्स एज एन एडल्ट बटरफ्लाई, तो तब उसमें कितना टाइम जाता है, क्या उसकी साइज होती है, कैसा दिखता है वो, कलर किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, तो इतना सारा उसने रिसर्च किया, इसके लिए काफी टाइम उसको लगा, काफी एफर्ट्स भी उसको लगाने पड़ रहे होंगे, हम समझ सकते हैं, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई द फीमेल बटरफ्लाई एंड टू कैच इट। ओके, इस एक फीमेल बटरफ्लाई को भी अगर पकड़ना है तो उसके लिए काफी सारा टाइम जो है वो लगता है, उसको खुद को बाहर जाना पड़ता है। ओके, एंड इट रिक्वायर्ड प्लेंटी ऑफ वेंचरिंग आउटसाइड द हाउस। ओके, सो you would catch female butterfly and then they would acquire egg from them, and then egg would develop into caterpillar, and then it would further develop into pupa, and then eventually it would in the last stage develop as an adult butterfly। उसके बाद भी उनका रिसर्च जारी ही रहता था कि एडल्ट बटरफ्लाई की एक एवरेज एज क्या होती है, क्या उसका लाइफ स्पैन होता है, और अगर उनकी सडन डेथ हो जाती है, लाइफ स्पैन से पहले उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए कौन से रीजन जिम्मेदार होते हैं, ऐसा रिसर्च उन्होंने किया। सो इट वाज अ वेरी डीप स्टडीज। ओके, एंड देन आफ्टर व्हेन ही वाज इन 8th grade, 8th grade भी बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती है, we can imagine that the age was merely about 12 or 13 years at that time। So at that time he studied the cause of a viral disease that killed nearly all the monarch butterflies। एक टाइम ऐसा आया है कि यूएसए में मोनार्क बटरफ्लाइज सडनली गायब हो गए थे। छोटे छोटे इंसेक्ट और बर्ड्स के बारे में ऐसा देखा गया है अभी तक, आपको भी शायद पता ही होगा कि देयर आर सर्टेन स्पीशीज of insects and birds especially which would extinct suddenly from the planet। Even in India also, in case if we study or else think about it, तो Indian sparrow एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम दे सकते हैं कि बहुत ही विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम
within a very short space. I would precisely say that within the period of 20 years only, 20 सालों के अंतराल में ही इंडियन स्पैरो एक्सटिंक्ट तो नहीं हो गई, बट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक रीजन जरूर होता है, लेकिन जो रिसर्च करता है उसी को मालूम पड़ता है कि सडनली ऐसा ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ये स्पीशीज कैसे आ गई. इतना एक ब्यूटीफुल बर्ड है जिसकी आवाज से हम लोग सुबह उठा करते थे पहले. ओके, आई कैन स्टिल रिमेम्बर माई चाइल्डहुड कि जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे पता है कि सुबह मुझे अलार्म नहीं लगाना पड़ता था. स्पैरोज और उसके जैसे दूसरे बर्ड्स की आवाज से ही मैं उठ जाता था सुबह 6 बजे. कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी. और आज मैं सोचता हूं कि उस टाइम को 20 साल हुए हैं. राउंड अबाउट दैट मच टाइम, इतना ही हुआ है, विच इज नोन एज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो इतने ही टाइम पीरियड के अंदर ये इंडियन स्पैरो जो है, ठीक है, it has been bracketed as on the verge of extinction, the species, okay, which is on the verge of extinction, खत्म होने की कगार पे है. सुबह अब उसकी आवाज नहीं सुनाई देती है. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज में कोई एक पर्टिकुलर रीजन जिम्मेदार होता है जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाता है सडनली. तो एक बार ऐसा भी हुआ था यूएस में कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो गए थे. तो उसके एक्सटिंक्ट होने की क्या वजह थी, उसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया था. And he found out that it was a viral disease which was responsible for the killing of this beautiful species of butterfly which is known as monarch butterfly. A viral disease था, वो उनको पता चला. So it was kind of, you know, the making of a path of becoming a great scientist. कि एक छोटी उम्र का बच्चा जो है 12-13 साल की उम्र का है, उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग ऐसा रिसर्च किया जो उनसे पहले किसी को नहीं पता था कि एक्चुअली हमारे कंट्री से मोनार्क एक्स नाम के बटरफ्लाईज गायब हो गए हैं इनफैक्ट. और उनके गायब हो जाने की जो वजह है, फटाफट इतनी भारी मात्रा में उनकी डेथ हो जाने की वजह ये है कि वो एक वायरल डिसीज था जो उनके लिए इनक्योरेबल था और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वो स्पीशीज जो है वो अचानक से एक्सटिंक्ट हो गई. सो ही स्टडीड दैट व्हेन ही वाज इन 8th grade. And thereafter he studies in this particular study inspired further to for the study of viceroy butterflies also. एक स्पीशीज का नाम है, बटरफ्लाई की एक स्पीशीज का नाम है जो है वाइसरॉय बटरफ्लाई. ओके, मोनार्क और वाइसरॉय ये दोनों का एक सिनोनिम जैसे वर्ड है. मोनार्क वो भी राजा होता है, रूलर होता है, और वाइसरॉय भी एक रूलर होता है. ओके, सो दे लाइक टू रूल फॉर एज लॉन्ग एज दे लिव. तो दोनों का सिनोनिम नाम इसलिए एक जैसा रखा गया है. Why? Because he found out during his studies that even viceroy butterflies also, they were very much similar to monarch. सिर्फ दिखने में अलग थे, अदरवाइज वो अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारा मोनार्क बटरफ्लाई का ही कॉपी करते थे. ठीक है, ये उसने रिसर्च के दौरान एक खोज किया और दुनिया को बताया कि viceroy butterflies were very much similar in their lifestyle, as much similar as monarch X butterflies. हालांकि वो अलग थे, स्पीशीज अलग है, लेकिन वो हर एक चीज में monarch X butterfly की कॉपी करते थे. वो उन्होंने रिसर्च के दौरान फाइंड आउट किया. ओके, एंड दिस particular research won him an entry in international science and engineering fair. ओके, ये उनका सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट था कि जो कोई भी रिसर्च वर्क वो डिस्प्ले करते थे साइंस फेयर में. स्कूल लेवल पे बहुत सारे साइंस फेयर होते रहते हैं, आपको पता ही है. आपने खुद कभी पार्टिसिपेट किया होगा या तो फिर साइंस फेयर का आपने विजिट किया होगा. ओके, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके जो सिमिलर एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं. कुछ स्टूडेंट जो है वो विनर होते हैं, कुछ रनर्स अप होते हैं, और जो विनर रनर्स अप होते हैं उनको एक फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलता है बड़े लेवल पे अपना प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करने का.
So this particular project that he displayed at a district level about viceroy butterflies, okay, it won him an entry into international science and engineering fair, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यूएसए के बाहर यानी कि बहुत सारे देश जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिर्फ यूएसए नहीं बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे थे, वैसा इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में उनको एंट्री मिला। ठीक है, और एक सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका ये था। एंड देन जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, वहां पे एक्चुअली जो हायर सेकेंडरी हम वर्ड यूज करते हैं वो वहां पे हायर सेकेंडरी वर्ड यूज नहीं करते हैं, हाई स्कूल वर्ड यूज करते हैं, जो कि उनका 10th और 11th स्टैंडर्ड माना जाता है, 12th नहीं होता है वहां पे। हमारी सिस्टम में 12th स्टैंडर्ड होता है, बट ओवर देयर हाई स्कूल मीन्स द स्टडीज ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड खत्म करने के बाद आप कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो, वैसा उनका स्टडी होता है। ओके, सो एट द हाई स्कूल लेवल, ओके, ही डेवलप्ड द मोलेक्युलर स्टडीज। मोलेक्युलर स्टडीज का उन्होंने रिसर्च ज्यादा किया, ओके, और खास करके ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, उसका रीडिंग जो है उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, हर एक सफल इंसान जो होता है उसकी सफलता के पीछे एक सबसे बड़ा राज ये होता है कि कोई ना कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ऐसा होता है जो जिसको हम टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। ओके, क्योंकि उससे पहले का उनका जितना भी स्टडी था दैट वाज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ओनली। जब छोटा बच्चा कोई भी होता है, हम भी अगर हमारी उम्र में छोटे जब थे तब आपको भी याद होगा अपनी लाइफ के बारे में कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वी टेंड टू डू सो मेनी थिंग्स। काफी चीजें हम ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते हैं, किसी इंसेक्ट को पकड़ते हैं फिर उसको शोकेस में रख देते हैं, फिर उसको देखते रहते हैं। ठीक है, ऐसी अजीबो गरीब बातें लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग करते रहते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। फिर काफी बच्चे ऐसे आपने देखे भी होंगे कि बटरफ्लाई पकड़ लिया, फिर उसके पैर में एक धागा बांध लेते हैं लंबा सा, और फिर उसको छोड़ देते हैं, उड़ता है तो वो एक like a small kite it looks when it flies away। ठीक है, और जो वो जैसे जैसे उड़ता है वैसे वो उसकी जो पीछे बांधी गई जो डोर होती है, ठीक है, वो भी अलग अलग पैटर्न में वो उड़ती रहती है। सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फन, लेकिन फन फैक्टर से अलावा उसमें और कुछ होता नहीं है। जब हम आगे सोचते हैं, ठीक है, बहुत ही गौर से अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ये सारी स्पीशीज में, तो उसमें बहुत सारा जानने लायक होता है। ओके, तो एक नेक्स्ट लेवल होता है ये स्टडीज, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए जैसे ही ये चैप्टर में वो शुरुआत में लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू बिकम एन इंटेलिजेंट एंड अ सक्सेसफुल पर्सन यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मोर ऑफ योर टाइम। हर एक इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सफल इंसान होता है उसके पास 24 की जगह 28 या 32 घंटे भगवान उसको दे देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके पास भी उतना ही टाइम है जितना हमारे पास है, लेकिन जो टाइम उनके पास है उसको वो प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। ओके, शायद हम हमारी एक्टिविटीज बदल लेते हैं। वी टेंड टू डू सो मेनी अदर नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक स्पेंडिंग सम टाइम इन प्लेइंग वीडियो गेम्स, डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग, वॉचिंग टीवी। ठीक है, खाना पीना ये वो सब हमारी नॉर्मल लाइफ में चलता रहता है। बट द जीनियस पीपल आर दोज, ओके, हु आर क्यूरियस at the first place, and then in the second stage they would convert their curiosity into intensive deep research। ठीक है, इंटेंसिव डीप रिसर्च में ये अपना क्यूरियोसिटी लेवल को चेंज कर देते हैं, और वही रिसर्च, वही लेवल का एजुकेशन, वही लेवल का स्टडी उनका जो है वो उनकी सफलता का एक सबसे बड़ा राज बन जाता है। ठीक है, इसमें भी इस आर्टिकल में रिचर्ड एब्राइट के बारे में ऐसा लिखा गया है कहीं पे कि जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि व्हेन ही वाज इन द सेकंड ईयर ऑफ हिज हाई स्कूल स्टडीज he was basically researching about finding out the cause of the spots on the wings of the butterfly। okay, butterfly के bodies में या तो फिर उसके wings के
ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं उसका रीजन क्या होता है? तो वो रीजन भी पहले किसी ने नहीं ढूंढा था। पहले सब लोग ऐसा मानते थे कि इट वॉज काइंड ऑफ नेचुरल फिनोमिनन, अ सॉर्ट ऑफ ऑर्नामेंटल थिंग which were like found coincidentally on so many insects। कि एक ऑर्नामेंटल स्टाइल का एक डेकोरेशन टाइप का एक चीज होता है जो कुदरती रूप से उनके बॉडी के ऊपर पाया जाता है, दैट्स इट। उससे ज्यादा किसी ने और नहीं सोचा था। लेकिन रिचर्ड एफ राइट ने उसके ऊपर भी स्टडी किया व्हेन ही वाज इन द हाई स्कूल लेवल, एंड आफ्टर द डीप एंड इंटेंसिव स्टडीज he was able to find out that these spots were responsible, okay, for creating the hormones for their overall development। उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन का प्रोडक्शन जरूरी होता है वो ये स्पॉट्स के जरिए होता था, ऐसा उनके रिसर्च में पता चला। और ये भी उन्होंने फिर बाद में दुनिया को बताया। And ultimately, after completing his master's in molecular studies, he officially became a scientist into this field। Okay, 1959 में उनका जन्म हुआ था। So, based on the calculation, right now he is still alive and he is 61 years of age। ठीक है, तो उनका यही मॉलिक्यूलर रिसर्च एक्टिविटी अभी भी चल रहा है। He is still very much active into his field, okay, and he is still inspiring the prospective scientists of his field up to a great extent। उन्होंने काफी सारे बुक्स भी लिखे हैं based on the research oriented activities। He has published so many books also, okay, but mainly he is more interested in doing research, okay। और रिसर्च के जरिए जो कुछ भी नया कुछ उनको मालूम पड़ता है वो दुनिया को बताते हैं। और लेटेस्ट उनका इन्वेंशन यही था कि जो इंसेक्ट्स या तो बटरफ्लाई के ऊपर जो स्पॉट्स पाए जाते हैं वो भले ही हमें ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत डेकोरेटिव लगते हैं, ऑर्नामेंटल, लेकिन वो डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल से वो नहीं होता है। दीज स्पॉट्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन विच इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये उनका लेटेस्ट इन्वेंशन था जो उन्होंने रिसेंटली, यानी कि नॉट लॉन्ग अगो, एट द एंड ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी ओनली, ही हैड इन्वेंटेड दिस फॉर्मूला। ओके, तो उनसे जुड़ी हुई थोड़ी बहुत और बातें भी छोटी मोटी आर्टिकल में लिखी गई है, लेकिन डिटेल में आपको ये पूरा लेसन जो है वो आपको पढ़ना है। कुछ टेबल और चार्ट्स और कुछ फिगर्स भी दिए गए हैं बटरफ्लाई के, खास करके। Some of the interesting information that you may find in this book is a particular chart that he had made when he was at the primary level of his studies on page number 34, okay, जिसमें उन्होंने चार्ट को एक कैप्शन दिया है, नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 weeks। सिर्फ 1.5 महीनों में उन्होंने कितने टाइप के, कितने स्पीशीज के बटरफ्लाई पकड़े थे और वो भी कितने मात्रा में। सो यू कैन गेट एन आइडिया बेस्ड ऑन द चार्ट दैट ही हैड मेड के ब्रश फुटेड टाइप के बटरफ्लाई सबसे मैक्सिमम नंबर में उन्होंने पकड़े थे, एंड देन गैसमर विंग्ड बटरफ्लाई सेकेंड नंबर पे है, एंड देन इवेंचुअली थर्ड नंबर पे वाइट्स एंड सल्फर्स, ओके, और उसके बाद वुड निम्फ्स एंड सैटायर्स, और उसके बाद मोनार्क और स्नाउट बटरफ्लाइज भी उन्होंने पकड़े थे। ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने चार्ट में उसको डिस्प्ले किया है। एंड देन इन केस इफ यू हैव अ लुक at a figure which is given on page number 35, तो 35th वो भी एक इंटरेस्टिंग एक इमेज है। हाउ इज द मोनार्क बटरफ्लाई डिफरेंट फ्रॉम द वाइसरॉय बटरफ्लाई? मोनार्क बटरफ्लाई वाइसरॉय बटरफ्लाई से किस तरह से अलग होता है, उसका एक डिस्प्ले उन्होंने इमेज के जरिए दिया है। तो लुक वाइज तो काफी फर्क है। इन द फर्स्ट इंप्रेशन इटसेल्फ यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन देयर लुक्स, लेकिन वापस मैं आपको याद दिला दूं कि उन्होंने जब उनके लाइफ साइकिल का स्टडी किया और मोनार्क और वाइसरॉय बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल का कंपैरिजन किया,
तब ये पाया गया कि बेसिकली वाइस रॉय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई की एग्जैक्ट कॉपी करते थे अपने लाइफस्टाइल का, कोई उसमें फर्क नहीं था, सिर्फ लुक में फर्क था। ओके, सो अगेन दैट्स एन इंटरेस्टिंग इमेज इन द लेसन। ओके, और उसके अलावा आपको जो इनिशियल उनका एक रिसर्च था, दैट इज फाउंड ऑन पेज नंबर 33, species and subspecies of butterflies collected in 6 weeks in Reading, Pennsylvania। याद रखिए इस टाउन का नाम जो है उसको आपको पढ़ना है रेडिंग। इट्स नॉट रीडिंग, रीडिंग इज अ वर्ब, लेकिन वहां पे जो टाउन है उसका नाम, उसका सही प्रोनाउंसिएशन रेडिंग, पेंसिल्वेनिया स्टेट का नाम है। तो वहां पे जो रहते थे तो उन्होंने 3 टाइप के बटरफ्लाइज को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्लासिफाई किया था। वो 3 टाइप के बटरफ्लाई हैं, गॉस्मेयर विंग्स बटरफ्लाई, देन वुड निम्स एंड सटायर्स, एंड देन ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज। ओके, दीज आर द 3 मेन बटरफ्लाइज। उसके अलावा बीच में मोनार्क, व्हाइट्स एंड सल्फर्स एंड स्नाउट बटरफ्लाइज, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने स्टडी किए थे। ठीक है, लेकिन मेनली मैंने ये जो 3 बटरफ्लाइज के नाम बताए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा उनको पता चले थे रिसर्च के दौरान। सो दैट ही डिड व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल चाइल्ड स्टडीइंग इन merely द 2nd grade only। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको बहुत सुकून से आपको मिनिमम 1 आवर दे के कम से कम 2 बार ये चैप्टर को आपको पढ़ना है, तभी जाके आपको पता चलेगा। एक इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग और साइंटिफिक आर्टिकल है ये, which will be helpful to get some sort of inspiration also, not only about studies, but in case if you wish to achieve something in life, then nothing is impossible in this world. That sort of inspiration also you can get after reading this article. So I would strongly recommend to read this article at least twice. Even after that, in case if you don't understand related to the content, anything related to the content, then you are free to approach me via messaging. Okay, so that's it for this lecture. Thank you very much for your time and have a great day ahead.